سپنے آنسو بن کے سب میرے بہہ گئے، سارے ارماں میرے دل میں رہ گئے. حالانکہ انیشلی ایکٹر میں نہیں بننا چاہتا تھا. آئی وانٹڈ ٹو بی اے سنگر. تو بیک ان 2006, 7, 8 یہ خواب لے کے میں چلا تھا. But then in 2008 I was offered a project called Satrangi and my father was an actor. تو میوزک کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے. اور عائشہ جان زیب کی ایک شو کی بات کروں تو اس میں ایک بڑی کنٹروورسی بنی تھی جس میں خلیل الرحمان صاحب تھے اور ساتھ ساحل ادیم. الفاظ کا چناؤ بڑا ضروری ہوتا ہے. جس مومنٹ پہ آپ کسی کے منہ پہ بیٹھ کے اس کو جاہل بول دیں گے نا، یہ بتا دیتا ہے کہ آپ خود کتنے پڑھے لکھے ہیں اور آپ خود کتنے عالم ہیں. ویلکم ٹو اندر ونڈرفل ایپیسوڈ آف دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. اور آج میں جن شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے والی ہوں ان کے لیے بہت سارے لوگ منتظر ہوں گے، کیونکہ میں دیکھتی رہتی ہوں سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوالات ہیں. اینڈ آف کورس میرے پاس بھی بہت سارے سوالات ہیں، تو بالکل انتظار آپ کو نہیں کروائیں گے اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دی ون اینڈ اونلی آغا علی سے. سر، سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے آپ؟ السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں اینڈ تھینک سو مچ فار ہیونگ می. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. شروعات تو ہم یہیں سے کریں گے کہ کیسے آئے اس فیلڈ میں؟ کیسے آئے اس فیلڈ میں؟ یار ان شارٹ بچپن سے ہی کہیں نہ کہیں آئیڈیا تھا کہ اس فیلڈ میں آنا ہے. والد صاحب ایکٹر تھے، نانا واز ان دا سیم بزنس، مائی مامو انکل از ان دا سیم بزنس. لیٹر آن مائی کزن بیکیم این ایکٹر بفور آئی ڈیڈ. تو کہیں نہ کہیں وہ اٹ رنز ان دا بلڈ. اور کالج میں تھیٹر کرتا تھا میں، اور تھیٹر میں میں ایکٹ کرتا تھا اور گاتا بھی تھا ایٹ دا سیم ٹائم. سو انیشلی آئی وانٹڈ ٹو بی اے سنگر کہ ایک بینڈ بنائیں گے. اور ان دنوں میں بینڈس بہت پاپولر تھے، لائک جل اینڈ روزن، کال، آل دیز بینڈز ور ایٹ دیئر پیک. تو وہ اکثر کالج پرفارم کرنے بھی آتے تھے. تو بس وہاں سے یہ خواب لے کے میں چلا، اور بس پھر شاید رب کو یہ منظور تھا کہ ایکٹر بننا ہے. حالانکہ انیشلی ایکٹر میں نہیں بننا چاہتا تھا. آئی وانٹڈ ٹو بی اے سنگر. کرتے کرتے بس راستہ تبدیل ہوتا ہے. لیکن ہاں، وہ جب اسٹرگل شروع ہوا نا، تو مجھے پتہ چلا کہ ٹو بی اے سنگر یو نیڈ منی. بکاز آپ کو گانے ریکارڈ کرنے کے لیے پیسے چاہیے، ویڈیو بنانے کے لیے پیسے چاہیے، پھر ریلیز کرنے کے لیے پیسے چاہیے. اور تب یوٹیوب کا بھی ایسے کوئی اتنا کانسیپٹ تھا نہیں بالکل بھی. سوشل میڈیا، یوٹیوب تو اب زیادہ لیٹر آن جا کے آئی تھنک ان 2010s کہیں جا کے آپ کو سننے میں آیا تھا نا. تو بیک ان 2006, 7, 8 یہ خواب لے کے میں چلا تھا. بٹ دین ان 2008 آئی واز آفرڈ اے پروجیکٹ کالڈ سترنگی اینڈ آئی ڈیڈ اٹ بیکاز مجھے پیسے چاہیے تھے ٹو ریکارڈ اے سانگ اینڈ آل. لیکن پھر ایکٹنگ سے پیار ہو گیا اور مجھے لگا چلو دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن پھر ایکٹنگ زیادہ چلی اور میوزک کے لیے اگین پیسے ریکوائرڈ تھے. ایکٹنگ میں زیادہ پیسے ملے تو اس لیے اس طرف نہیں، وہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو لیٹر آن ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا مے بی آئی واز میڈ فار دس. ایسا نہیں کہ میوزک میں نے میوزک کبھی چھوڑا نہیں. ابھی بھی آئی ایم اسٹل آن مائی البم اینڈ وی ہیو دس ڈریم آف ریلیزنگ اٹ دس ایئر ان شاء اللہ. لیکن اگین ایکٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جب لوگوں کا پیار ملنا شروع ہوا تو مجھے لگا کہ یار یہ تو آئی کین ڈو اٹ. اینڈ مائی فادر واز این ایکٹر. تو کہیں نہ کہیں ان کا ادھورا سفر پورا کرنے کا جو ایک خواب تھا وہ بھی بیچ میں تھا. بالکل. اچھا آغا، آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں میوزک البم کی، میوزک کی مطلب کس طرح سے بڑی ایکسپینسو ہے یہ ساری چیزیں. تو ابھی تک کوئی البم ریلیز ہوئی آپ کی؟ نہیں، نو البم تو ریلیز نہیں ہوئی، سنگلز ہی ریلیز ہوا ہے. ابھی 2 گانے اور ہیں جو ہم نے ریکارڈ کیے ہیں، دیٹ کائنڈ کمپلیٹس دی البم. تو 9 گانے ہیں البم میں. اور کس ریزن سے نہیں ہوئی؟ مطلب اٹس بین سو لانگ کہ آپ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. آئی تھنک آپ کو میوزک کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے، اور اسپیشلی کیونکہ میں اب ایک سیلیبریٹی ہوں اینڈ آئی ایم دس ایکٹر. تو پیپل ایکسپیکٹ می ٹو بی ان اے سرٹن وے. ان کو ویڈیو بھی ایک طرح کا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میں ایک نئے لڑکے کی طرح موبائل پہ ویڈیو بنا نہیں سکتا ہوں، حالانکہ میں بنانا چاہتا ہوں. آئی تھنک دیٹس ویری، if it comes out well, it's very cool to do something like that. But still I think people deserve something different from me, and they also expect to see some wonder. ایک کوالٹی پروڈکٹ ہونی چاہیے. 100%. تو اسی کو پل آف کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اور کیونکہ میں ایکٹنگ کا گیپ نہیں لیتا ہوں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایک 6 مہینے کا گیپ لو تو یو کین فلی گیو اٹ ٹو یور میوزک. بٹ تھرو آؤٹ اسکرین پہ رہتے وہ میں نہیں کرتا. میں تھوڑا لالچی ہوں ایکٹنگ کے بارے میں. That's well and good. اچھی بات ہے، آپ پروفیشن سے اتنے سنسیئر. اچھا، گانوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ تھوڑا سا گنگنا کے.
अभी से ही गुनगुना दूं? अच्छा क्यों नहीं, मैं एनर्जी डबल हो जाएगी ना उससे जरा. सपने आंसू बन के सब मेरे बह गए, सारे अरमां मेरे दिल में रह गए, तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है, तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है. वेरी वेल. और आपके आने Thank से you. पहले मैं यही गाना आपका सुन भी रही थी तो लग रहा था Oh, बड़े really? अफसरदा हैं आप उसमें. किस गम के बाद आपने ये गाना गाया? यार गम पड़े दुनिया में और पर ऐसा नहीं कि किसी गम में गाना गाया. दिस वाज एक्चुअली नॉट माय सॉन्ग, इट वाज माय वन एंड ओनली कवर. और थोड़ा इसमें हमने अपना काम किया था बिकॉज ये गाना इनकम्प्लीट था, तो थोड़ा इसको हमने कंप्लीट किया था. और तो बस बहुत दिल को लग गया, तो मुझे लगा ये करना चाहिए, तो बस और कर लिया. फिर बस कर लिया. अब वो अच्छा, जो यूजुअली लाइफ में भी ऐसी है कि जो चीज माइंड में आती है बस आप कहते हैं कर लें या नहीं, फिर उसके लिए हाँ, बैठ के बिल्कुल. डिसीजन मेकिंग प्रॉपर बिल्कुल होती है. नहीं, आई थिंक अगर कोई बहुत जोर से दिल को चीज लग जाए तो वो कर लेनी चाहिए. फौरन कर लेना Yeah. चाहिए. अच्छा, वेरी वेल. अच्छा, फैमिली में सारे ही आपके स्टार्स हैं, तो आपको कोई वो स्टारडम वाली फीलिंग दी गई घर में कि सेलिब्रिटी आ गया कोई हर स्टार ड्रामे में घर में सेलिब्रिटी नहीं होता. ये तो सब घर की मुर्गी दाल पर हाँ. और मुझे लगता है वो होना भी चाहिए ना, बिकॉज देखो व्हेन यू गो आउट सी एंड you expect people to act a certain way, और आप बहुत लकी हैं कि लोग उस तरह आपको मिलते हैं. जैसे मैं बाहर जाऊँ, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो कहीं ना कहीं कोई प्यार करने वाला मिल जाता है, एंड देन दे से ऑल दीज नाइस थिंग्स. तो आपको उनके सामने एक सर्टेन तरह होना पड़ता है, पर जब आप घर वापस जाते हैं दैट्स व्हेन यू लूज इट, यू वांट टू बी योरसेल्फ. और आपके घर वालों के सामने आप वो शख्स बनना चाहते हैं जो आप हमेशा से हैं. एक्चुअल में जो तो आप अगर हैं. वहाँ पे भी वो नहीं हो पाएगा तो गलत हो जाएगा. अच्छा, बड़े लोगों को क्यूरोसिटी होती है कि जब ये एक्टर्स बैठते हैं या जब ये अपने घरों में होते हैं तो ये लाउंज में बैठ के या घर में बैठ के क्या डिस्कशन करते हैं. तो आप लोग जब सब इकट्ठे होते हैं तो क्या डिस्कशन होता है? तुम्हारा ये ड्रामा अच्छा है, तुमने ये एक्टिंग अच्छी की या नहीं, इससे हट के सब कुछ होता हाँ, है? ये भी करते हैं कभी कभी. जैसे मेरी वालदा जो है ना, वो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है. वो ठीक. मेरा हर काम देखती हैं, वो हर इंटरव्यू, हर पॉडकास्ट, हर ड्रामा, एवरीथिंग शी वॉचेस इट. एंड देन एवरी टाइम आई सिट्स डाउन विद हर, तो वो अक्सर मुझे बताती हैं कि तुमने वो सीन बहुत अच्छा किया, ये सीन क्यों इतना अच्छा नहीं किया, ये ड्रामा बहुत अच्छा है. या जैसे मैं टेलीफिल्म्स बहुत करता है हमेशा से ईद पे, थिंग्स, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी व्हेनेवर समथिंग टर्न्स आउट टू बी गुड. अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कोई ड्रामा आने वाला होता है और जैसे कोई सिंगल प्ले आने वाला होता है, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि ये इतना अच्छा नहीं है, ये थोड़ा अच्छा शूट नहीं हुआ है. अच्छा, डिसीजन मेकिंग में भी उनसे पूछते हैं, लाइक कोई ड्रामा साइन करने वाले हैं या कोई प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं तो पूछ लें कि अम्मा ये प्रोजेक्ट आया है, कर दूं या ना करूं? नहीं. टू बी ऑनेस्ट, वो सी प्रोफेशनली किसी चीज़ को जब यू वांट टू टेक इट अप, ओनली यू नो कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. माय मदर इज़ लाइक द व्यूअर, तो उनको नहीं पता है कि प्रोडक्शन के किस प्रोडक्शन हाउस के क्या मसले हैं, किस डायरेक्टर के साथ क्यों काम नहीं कर सकते. और मैं उनको इन बातों से मैं रखता भी दूर हूँ. सो आई ऑलवेज टेल हर कि ये कैरेक्टर आया है, ये इसमें ये अच्छा, लोग डिसीजन हैं. मेकिंग आपकी सोलरी खुद की होती है या खुद की कोई होती और है. साथ होता है इसमें? नहीं, मोस्टली तो खुद की होती है. और मेरे बड़े भाई साहब हैं, अली सिकंदर साहब, ऐसे मामलात में मैं उनको तंग करता हूँ फिर कि यार ये आया है, ये अभी जैसे कल ही एक फ़ोन आया था तो मैंने उनको फ़ोन किया कि यार ये इस तरह ये लोग हैं. और सो ही इज़ एक्चुअली बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स सच थिंग्स बेटर. अम्मा को मैं प्रेशर वाली चीज़ों से दूर रखता हूँ. और मैं कभी भी घर कोई प्रोफेशनल मसला लेके नहीं जाता हूँ. माई मदर नेवर नोज कि मेरी कोई प्रॉब्लम चल रहा है या कोई भी किसी किस्म का भी कोई इशू अगर चल रहा है लाइफ में, तो उन्हें नहीं पता होता है. प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों डिफरेंट है. हाँ, पर्सनल लाइफ इज माई मदर इज़ माई पर्सनल लाइफ एंड माई लिटिल फैमिली एट होम. ठीक. तो वो अच्छा, फैमिली की बात हो रही है तो अली सिकंदर की तरफ ही आना चाहूंगी. जी. भाई हैं आपके, आपने कहा बड़े भाई हैं, जी. तो उनके साथ कैसे टर्म्स है? वही बहन भाई वाली नोक जोक है या फिर नहीं? नहीं यार, अच्छे गुड टर्म्स है. वी बोथ कॉल ईच अदर आगा.
और ये कई लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब हम हाँ लोगों के बीच में बैठे होते हैं ना, और हम एक दूसरे को कहते हैं आगा वो क्या हुआ, हाँ आगा हो रहा है। अच्छा, तो आप दोनों सिर्फ एक दूसरे को आगा बोलते हैं या घर हाँ, वाले सब भी? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हम दोनों हाँ, एक क्योंकि दूसरे को वहाँ तो आगा बहुत बोलते हैं। कंफ्यूजन हाँ, क्रिएट आगा होता है। को यूजुअली लोग अली बोलते हैं और ठीक है। मुझे आगा बोलते हैं, हाँ। पर आई कॉल हिम आगा फॉर सम रीजन। एंड सो 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 आगा के साथ ना मेरा आई वी बिन द बेस्टेस्ट फ्रेंड्स हमेशा से। हम लॉन्ग लॉन्ग अगो आई थिंक जब हम दोनों ने काम करना शुरू किया था और हम दोनों पे जिम्मेदारी आई थी घर चलाने की, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स हम बिल्कुल दोस्तों की तरह रहे, हमेशा। कोई So, ऐसा मोमेंट हम लड़ते भाई भी के साथ हैं, जो शेयर बहस भी करना होती है, चाहते हैं? और बहुत सारे मोमेंट्स है यार, मेरे भाई के साथ ही मोमेंट्स है मेरे सारे। बट वन ऑफ द आई थिंक द लॉन्गेस्ट हम दूर रहे इज़ व्हेन ही वाज इन तमाशा। और हाँ। वो टाइम मेरे लिए इमोशनली बहुत बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जो आगा के साथ शेयर करता हूँ मैं किसी और के साथ नहीं करता। सो व्हाट ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, मेरी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में उसको पता है। तो उन 2 महीनों में 3 महीनों में मैं बहुत वनरेबल हो गया था। और फिर जब मैं उस मिलने गया फाइनली उसको तमाशा में, एंड पीपल ऑल्सो सॉ यू नो दैट इमोशनल मोमेंट दैट वी हैड, एंड दैट वाज वेरी जेन्युइन, बिकॉज यू नो मैं मेरी लाइफ में आई डोंट थिंक कोई एक दिन ऐसा गुजरा होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह टचवुड, कि मेरी आगा से बात नहीं हुई होगी। सो यू नो वी टॉक एवरी डे, ठीक है। मोर और लेस किसी भी चीज़ के बारे में। तो माशाल्लाह वो द बॉन्ड आई शेयर विद माय ब्रदर, इट्स आई थिंक द मोस्ट स्पेशल थिंग आई हैव इन माय लाइफ। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अली सिकंदर तो गए तमाशा में, आपने वो फेस भी उनका देखा। अगर आपको तमाशा का सीजन 2 आता है या 3 आता है, उसमें आपको ऑफर किया जाए कि आप भी उस घर में यार लॉट ऑफ जाके पीपल, यू नो मैं जब गया तमाशा में तो बहुत लोगों ने ये कहा कि मुझे बादशाह बन जाना चाहिए घर का, और बहुत मुझे मैसेजेस आए और वो बहुत प्यार मिला लोगों से। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट आई थिंक अदनान सिद्दीकी साहब डज अ ग्रेट जॉब, और वो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। वैसे ही अदनान भाई बहुत अच्छे लगते हैं, और वो घर में भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर कभी अगर मुझे ऐसा कोई शो मिला टू होस्ट, आई वुड लव टू, बिकॉज आई नहीं, होस्ट का नहीं, अगर आप एज अ कंटेस्टेंट जाएं और नहीं उस हो घर में पाएगा रहें वो। नहीं मुश्किल काम नहीं, है। आई थिंक मैं कभी किसी भी घर में इतने लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगा। इट डजंट मैटर कि वो आइसोलेटेड रहते हैं आप। कि मुझे थोड़ी आई डोंट नो, जस्ट आई थिंक द एज आई एम इन अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के साथ अटैच होना, अनलेस अब आप जिसके साथ अटैच्ड हैं। पर नई दोस्तियां बनाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं बना पाता हूँ दोस्त आसानी से। सो मुझे लगता है कि वो वहाँ तो भाई बहुत, नई दोस्तियां बनाना मुश्किल है, नए रिश्ते बनाना भी मुश्किल लगता है। हाँ हाँ सेम चीज़ है हाँ। दोस्ती होती है तो रिश्ता बनेगा ना, वरना तो नहीं बन पाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आई डोंट नो, मेरे में ही शायद कोई प्रॉब्लम होगा कि ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाते मेरे। ठीक है, बड़ी रिजर्व सी पर्सनैलिटी हैं आप इस मामले में। नहीं यार, मैं रिजर्व तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगेन आई थिंक इट्स टफ टू ट्रस्ट पीपल दीज डेज, यू नो इट्स। ठीक। और ज़िंदगी में जब आपने बहुत धोखे खाए होते हैं, फ्रूट्स वगैरह धोखे खाए होते हैं, धोखे। तो उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इट्स ओके, आई थिंक कोई जब आपसे दोस्ती करना चाहता है तो आई थिंक वो खुद ही रास्ता बना लेता है, और फिर मे बी यू नेवर नो। अच्छा, रिलेशंस को आप किस तरह देखते हैं? चाहे वो बहन भाई का रिलेशन है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, चाहे मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप है, आजकल उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ज़ाहिर है सोशल मीडिया के साथ, या मैं बोलूँगी फ़ोन्स के साथ, इन चीज़ों के साथ बड़ी चेंजेस आई हैं। वो खुलूस नहीं रहा बहुत सारी जगहों पे। कुछ लोग कहते भी हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, चीज़ें वैसी हैं, टेक्नोलॉजी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हाउ डू यू लुक एट दिस? यार सी, यू can be very occupied because of the technology and this whole internet bala that you have. लोग बहुत ऑक्यूपाइड रहते हैं फ़ोन वोन में, दैट्स ट्रू। लेकिन मुझे लगता है कि रिश्ते निभाने वाले लोग जो है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी दूर हैं, कितने पास हैं, कितने ऑक्यूपाइड हैं। एक बड़ी कमाल चीज़ बोली थी किसी ने ना, कि दुनिया में कोई इंसान इतना बिजी नहीं है कि वो आपको कॉल नहीं कर पाए। हाँ। दुनिया में कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं है कि वो आपको मैसेज नहीं कर पाए एक दिन में। चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, चाहे वो सबसे गरीब आदमी है, चाहे वो दुनिया का सबसे बिजीएस्ट जॉब में रहने वाला आदमी है, बट nobody is that busy to text you. And if somebody does that, then it's not technology. It's they genuinely don't care about you, and you should understand that. जहाँ तक रिश्तों का ताल्लुक है, दुनिया का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, रिश्ता जो
जो वन साइडेड चल सकता है. इट्स Exactly. ऑलवेज गिव एंड Two-sided टेक. effort है इसमें. ये कभी नहीं हो पाएगा कि आप ही इनपुट करते रहे बिकॉज आपको वो रिश्ता संभालना है और सामने वाला कहे कि यार भाई मेरे से इतना ही होता है. अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज या कोई ऐसा रिलेशन आया जिसमें लगा कि नहीं सिर्फ मैं इनपुट दे रहा हाँ हूँ, अगला ऑब्वियसली नहीं ऑब्वियसली दे. डेफिनेटली फ्रेंडशिप्स होती हैं, बहुत सारे दोस्तों के साथ होती है, कोलीग्स के साथ ऐसी होती है. कोई एक ऐसा जो यहाँ मेंशन करना चाहे. हाँ आया ना. मैं बता रहा हूँ ना वेयर आई थॉट दैट यू नो इट्स आई हैव हैड इनफ कि मैं मतलब कितना ही ट्राई कर सकता हूँ मैं कि एक रिश्ता चल जाए, एक बॉन्डिंग बना रहे, एक दोस्ती बनी रहे, एक वो बरकरार रहे जो हमारे बीच में है. पर अगेन वो वन साइडेड हो नहीं सकता. नो मैटर हाउ क्रेजीली यू ट्राई, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको लगेगा कि यार शिट मैं थक गया हूँ. और प्यार एक बड़ी कमाल चीज़ है यार. ये care and love and you know it's an emotion that you need. When you give it you want it back. बेलॉस इक्वली चाहिए होता है. बेलॉस प्यार और वन साइडेड लव स्टोरीज and एक तरफा मोहब्बत and all of that, it's all bullshit. You always want love in return, and even if it's a friend, you want that friend to make the equal amount of effort. वो अगर उतनी ही effort नहीं डालेगा उस रिश्ते में तो आपको नहीं रहना चाहिए उसमें. अच्छा, अगर देखें बहुत सारी अगर मैं आजकल बोलूँ या मतलब पिछले 6-7 महीने से या साल 1.5 साल से मैं बोलूँ तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की ये चीज़ें आ रही हैं कि या तो वो जो फीमेल्स हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं या फिर रिलेशंस जो हैं वो चल नहीं रहे. रिसेंटली आज ही मैंने एक खबर देखी, जो एंकर पर्सन है आयशा चांजेब, उनकी वो चीज़ आई. फिर पिछले दिनों भी एक इस तरह से थी. ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? यार द रीज़न बिहाइंड दिस आई थिंक इज़ कि जब भी आप कोई रिश्ता आ गया ज़बरदस्ती चलाना चाहेंगे तो वो बिगड़ जाएगा. हमारे यहाँ ना क्या पता है क्या है, सोसाइटी जो हमारी है ना वो भेड़ी हैं साले. दे वांट टू एंजॉय योर मिजरी. दैट्स हाउ इट इज़. अगर आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, आप ये जो बड़े हैं ना हमारे, ये सबसे ज़्यादा मुझे जो पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में जिस चीज़ को देख के दुख होता है वो होता है कि ये जो एक ऑर्थोडॉक्स सोच है, ये कि जो मेरे साथ हुआ है वही मैं सामने वाले के साथ करूंगा. फिर वही देखो, जिस बाप को उसका बाप मारता है वो बड़ा होके बाप बनता है, फिर वो अपने बच्चे को मारता है, वो बच्चा बड़ा होता है, फिर वो अपने बच्चे को मारता है. क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये तो मेरे साथ भी हुआ है. जो चीज़ देख रहे हैं बस वही सीखते जिस तरह जाएंगे, मैं उसी पला बड़ा साइकिल हूँ, में. जैसे मुझे बचपन में अगर मेरा बाप मारेगा और मेरे लिए वो मेरे घर में एक नॉर्मल बात है कि मेरा बाप मुझे छोटी छोटी बात पे पीट देता है, तो जब मैं बड़ा हूँगा आई विल हैव दैट पॉइंट ऑफ वायलेंस इन मी, एंड देन मैं जब तो 90% चांस ये है कि मैं अपनी औलाद को मारूंगा. इसी तरह से बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमारे से, अगर आप और 20-25 साल पीछे चले जाओ, जब ये टेक्नोलॉजी और ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं था और इतने राब्ते नहीं थे, तो हमने हमेशा यही सुना है ना कि बेटा तुम शादी करके जा रही हो तो अब तुम्हारी लाश ही वापस आनी चाहिए. अब उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए. दिस इज़ वन हेल ऑफ एन एक्सट्रीम. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. देखो आप कोई भी रिश्ता जिसकी आप बात करते हो, हम दोस्ती करते हैं किसी से, क्यों करते हैं? बिकॉज हमें खुशी मिलती है. हम बाज़ार से जाके अपने खून पसीने की कमाई से जब कुछ ख़रीदते हैं तो क्यों ख़रीदते हैं? कि वो ख़रीदने से हमें खुशी मिलती है. वो कंफर्ट मिलता है, विक्ट्री फीलिंग आती है, और एक अचीवमेंट फील होता है आपको कि यार देखो ये मैंने किया है. सो लाइफ का कुल मिला के खमियाजा ये है कि आपको खुश होना है. ठीक है. आप हमारे यहाँ ये जो ख्यालात है ना कि शादी नहीं चल रही है, बच्चा पैदा कर लो, सब ठीक हो जाएगा, तो आपके बड़े जान पूछ के बिल्कुल होशो हवास में आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि तुम एक डिस्ट्रैक्शन पाल लो, तो ध्यान वहाँ चला जाएगा तो ये रिश्ता चल पड़ेगा. तो आपकी बच्ची को जो प्यार, जो केयर, जो खुशी चाहिए वो नहीं मिलेगी. उल्टा आप उसको एक और जिम्मेदारी दे रहे हैं एक ऐसे घर में जहाँ जिस इंसान के साथ शादी करके वो गई है उसको उससे वो प्यार, वो अटेंशन मिल ही नहीं रहा है. तो आप उसे कह रहे हैं कि नहीं तू पूरी जिंदगी इस फीलिंग के साथ गुजार दे. और बूढ़े होके ना फिर तू ये कहानियां सुनाई बाहर जाके कि हाय भैना सानू ते बस गुजार ली जिंदगी अंजी. और फिर वो हेट्रेड क्या है ना वो आगे चलेगा, आगे शिफ्ट होता है. वो आगे क्योंकि और वही माँ जो है ना फिर वही माँ अपने बच्चों को बोलेगी मैंने किया नहीं कर सकती, हमने नहीं बर्दाश्त किया. आपने नहीं सुना, ये हमारी सोसाइटी में ये सबसे कॉमन बात है. तो तुम सह रही हो तो क्या हुआ, हमने नहीं सहा. ये सबसे घटिया बात है, सबसे घटिया. कौन सी नई बात होगी? बच्चा खुश नहीं है तो यार वो खत्म करो रिश्ता. देखो इस्लाम में आपको नापसंद किया गया है
لیکن آپ کو موقع دیا گیا ہے نا, ایسا تو نہیں کہ نہیں دیا گیا. آپ کو کیوں دیا گیا ہے؟ بیکاز اٹ از پاسبل. رب نے جوڑیاں اوپر بنائی ہیں, پر آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ جو جوڑی آپ جس کے ساتھ ڈیسائیڈ کرنے لگے ہیں وہ وہی انسان ہے. اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ سچی نیت سے ایک رشتہ شروع کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ نبھانے کی پوری کوشش کریں, بہت اچھی بات ہے. لیکن جس دن آپ کو یہ لگے کہ یار یہاں میری عزت مجروح ہو رہی ہے, یار یہاں مجھے پیار نہیں مل رہا ہے, یار میرے باپ نے مجھے, میری ماں نے اتنے پیار سے پالا ہے, ہر لڑکی کا اختیار ہے نا یار کہ اس کی بھی پوری زندگی خوشیوں سے بھری ہو. بھری نہ ہو تو کم سے کم اس کو وہ فیلنگ ضرور آئے کہ یار یہ میرا گھر ہے. یا اس کو وہ فیلنگ نہیں آئے کہ یار میں نے رو رو کے اب بس یہ وقت گزار دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے ماں باپ نے بھی گزار دیا تھا. تو میں مجھے بہت غصہ آتا ہے ان باتوں پہ. اور پھر کیا ہوتا ہے نا, پھر یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ جب زبردستی ایک رشتہ ٹھوس رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ سفر کریں گے. اچھا, یہ بھی اسٹیٹمنٹ بولی جاتی ہے یہ میڈیا کی انڈسٹریز ہیں, یہ تو گھر چلا ہی نہیں سکتی, میڈیا انڈسٹری کی لڑکیاں یہ تو گھر چلا ہی نہیں سکتی, گھر بسا ہی نہیں سکتی. کون بولتا ہے؟ بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز بھی کوٹ ہوتی ہے, مطلب جنرل پبلک کی اوپینین اگر میں ہر بولوں تو. فیلڈ میں نا آپ کے پاس ہزاروں ایگزامپلز ہوں گی, اچھائی کی بھی برائی کی بھی. کتنی ہماری ہیروئنز ہیں ماشاء اللہ, people like Aiza, people like Eamon, Minal, all these girls, and they are very successful. Sunita Marshall, میں کتنے نام لوں ابھی, فضیلہ قاضی جی, all these guys are working یار, سب کے گھر چل رہے ہیں. ندا سب سے بڑی ایگزامپل ہے. ہاں بالکل. She's been doing a show from the past, I don't know, 14-15 years, and she has a lovely family. More than a decade. تو مسئلے ان کی بھی شادیوں میں آئے ہوں گے, سب کی. دیکھو مسئلے آنا پرابلم نہیں ہے, بٹ جب آپ کو یہ لگے کہ یار یہ رشتہ جو ہے نا یہ ون سائیڈڈ کام ہو گیا ہے, اور ہاتھ اٹھا لینا آئی تھنک شوڈ بی دی اینڈ آف ایوری تھنگ. اگر آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یار یہ کسی بغیرت آدمی نے میری بچی پہ ہاتھ اٹھایا ہے, اور اس پہ جب ماں باپ اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تم نے کچھ غلط کیا ہوگا یا تم نے, وہاں سوال جواب نہیں ہونے چاہیے, وہاں پولیس کو فون ہونا چاہیے اور وہ بندہ اندر ہونا چاہیے, اور آپ کی بیٹی کا وہ گھٹیا رشتہ ختم کر کے اس کو اپنے پاس لائیں, اس کو سیکیور فیل کرائیں, اور اس کو بولیں کہ بیٹا تیری زندگی سامنے پڑی ہے, تجھے کو اچھا آدمی مل جائے گا یار, یو ڈونٹ ہیو ٹو ویسٹ یور لائف. تو یہ پتہ نہیں ہے, یہ اللہ کرے کہ یہ ہماری سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے بچوں سے پیار کریں یار. بالکل, یہ بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک بڑی اچھی کوٹ تھی کہ a divorced daughter is better than a dead daughter. ایگزیکٹلی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, آپ چینج آ جانا چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا, عائشہ جانزیب کی ایک شو کی بات کروں تو اس میں ایک بڑی کنٹروورسی بنی تھی جس میں خلیل الرحمان صاحب تھے اور ساتھ ساحل ادیم, اور ان کا یہ تھا, وہ ایک خاتون تھی, انہوں نے کویشچن پوچھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اس ورڈ کا میننگ پتہ ہے, نہیں پتہ تو آپ جاہل ہیں. کیا 95% خواتین واقعی جاہل ہیں پاکستان کی, یا پھر وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں بولا؟ یہ میری نظریے میں یہ پوائنٹ ہی نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی, دیکھو ایک تو نا الفاظ کا چناؤ بڑا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو جس مومنٹ پہ آپ کسی کے منہ پہ بیٹھ کے اس کو جاہل بول دیں گے نا, تو معاملہ ویسے ہی یہ بتا دیتا ہے کہ آپ خود کتنے پڑھے لکھے ہیں اور آپ خود کتنے عالم ہیں. when you say کہ جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے, دیکھو ان پڑھ لفظ جو ہے نا اس میں اور جاہل میں بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے. بالکل, ٹھیک ہے. کئی لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریز نہیں ہیں بٹ وہ شعور رکھتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو کروڑوں پتی ہیں, میں جن کو میں جانتا ہوں, جو زمینداری کے کام میں نمبر 1 ہے, کھیتی باڑی کے کام میں نمبر 1 ہے, اپنے بزنس میں نمبر 1 ہے, بچپن سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کاموں پہ, لیکن ڈگریاں نہیں ہیں ان کے پاس, تو آپ انہیں جاہل بولو گے. وہ عورت جو اپنا گھر چلاتی ہے, اس کا پورا سیٹ اپ چلاتی ہے, اتنی سی تنخواہ میں 4 بندوں کو روٹی بھی کھلاتی ہے, گھر کی صاف صفائی کا, مہمان آنے کا بھی خیال رکھتی ہے, اس کو آپ جاہل کیسے کہہ سکتے ہو یار؟ وہ جاہل لوگوں کو وہ سب نہیں آتا ہے. وہ شعور ہونا مطلب آپ شعور رکھتے ہیں, پر آپ ان پڑھ ہوں گے, آپ اسکول نہیں گئے ہوں گے, کالج نہیں گئے ہوں گے, آپ کو موٹے موٹے الفاظ نہیں آتے ہوں گے, پر وہ کتنوں کو آتے ہیں. ایسے تو میں کوئی بھی ایک لفظ اٹھا کے لے کے آ جاؤں اور میں بولوں کہ ہاں بتاؤ ذرا تمہیں اس کا مطلب آتا ہے, تمہیں اس کا مطلب نہیں آتا تو تم جاہل ہو. So that's very harsh. اور ایک عقل مند آدمی, ایک پڑھا لکھا آدمی, ایک مذہب کا شعور رکھنے والا آدمی ہارش ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو تم نے سیکھا ہی کچھ نہیں دوست, پھر تم نے کیا سیکھا. میں ہر جگہ بیٹھ کے کوٹ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از مائی رول ماڈل فار لائف اینڈ دی اونلی ہائی لائٹ فرام ہز لائف جو ہمیں اسکول سے پڑھائی جاتی ہے. ان کے جو قصے ہمیں
स्कूल की किताबों में पढ़ाए गए हैं उनसे सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्या होता है? हुस्न अखलाक। तो अगर आपने उनसे अखलाक ही नहीं सीखा तो आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है फिर। बिल्कुल नो डाउट। अच्छा, अगर एक और चीज़ भी आ जाती है कि जो जितनी भी स्क्रीन पर्सनैलिटीज़ होती हैं या जी। सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आती है जब आप स्क्रीन पे बैठे हैं तो बड़ा कंपोज्ड रहना पड़ता है, अपनी बातों में भी, अपने एक्शंस में भी, हर चीज़ में भी। ये कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, क्योंकि मोस्टली लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं भी करते। या फिर दूसरी तरफ अगर पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक भी हर छोटी छोटी चीज़ को टारगेट करती है। अगर कोई कहीं पे कुछ भी करता हुआ दिखाई दे तो अच्छा ये एक्टर हो कि ये सेलिब्रिटी हो कि ये कर रहा है, तो वो चीज़ बड़ी क्रिटिसाइज होती है। आपकी लाइफ में वो फेस कभी आया है कि जहाँ पे आपको इस तरह का क्रिटिसिज्म मिला हो कि कोई छोटी सी चीज़ और बोला गया कि नहीं इसने तो ये हमेशा कर लिया? देखो, अभी क्या है ना, इंटरनेट ना एक बड़ी कमाल, उसको समझ लोगे तो आप फिर जिंदगी सुकून से गुजार सकते हो। देखो सोशल मीडिया क्या है, हाँ। लेट्स से कि मैं आपको बोलता हूँ अभी कि आप बहुत खूबसूरत हो, तो कई लोग नीचे आके कमेंट करेंगे कि क्यों भाई खूबसूरत कहाँ से लग रही है, क्या हो गया, कपड़े तो पहनने, ये झुमके कैसे हैं, ये फलां। और अगर मैं बोल दूं कि आप खूबसूरत नहीं हो हाँ। तो भी हजारों आ जाएंगे कि इतनी खूबसूरत लड़की को तुमने ऐसे क्यों बोला, तुमने तो वट एवर यू से, देर आर गोइंग टू बी पीपल हु आर गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ दैट, देर आर गोइंग टू बी पीपल हु आर अगेंस्ट दैट। इट्स अ फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी मैन। इट्स महंगाई ने कमर तोड़ के रखी हुई है हर इंसान की अपने एंड पे। जिसके पास जितना भी है वो परेशान है इस वक्त, और उनसे ज़्यादा परेशान है उनके बच्चे, जिनको वो सब नहीं मिल पा रहा है जो शायद 2 साल 4 साल पहले मिल रहा था। यू नो, मे बी घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, गर्मी बहुत है, हर कोई एसी नहीं चला पा रहा है। आपको क्या लगता है वो सारा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा? वो निकलेगा हम पे, क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स हैं। हमने वो लाइसेंस दिया है लोगों को कि आप आओ, खुल के बोलो हमें। हम पब्लिक फिगर है ना, हमारा तो कोई जवाब ही नहीं हम दे सकते इस बात में। आप कुछ भी बोल दो कि जैसे मेरी लाइफ के बारे में लोग आके ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे कम से कम वो मेरी फूफो के बच्चे तो हैं, कम से कम। हालांकि अच्छी से मुझे एक दोस्त की बात याद आ गई, यूज्ड टू से कि ये जो पर्सनैलिटीज जो स्क्रीन पे आती है ना, क्योंकि स्क्रीन हमारे लाउंज में लगी होती है तो हमें लगता है कि हमारे घर का हिस्सा है और हमें ये एक राइट मिल गया, लाइसेंस मिल गया कि हम इनसे हर किस्म का सवाल पूछ सकें, हर किस्म का क्रिटिसिज्म कर सकें। ओके। देखो लेकिन पॉइंट ये, वो लाइन आपको भी तो कहीं ना कहीं खींचनी है ना। देखो आपको आप सड़क पे चलते किसी बंदे को रोक के पूछो अभी तेरी शादी कैसी चल रही है, वो आपको क्या जवाब देगा? इमेजिन करो। तो पड़ जाएगी। उसी तरह से मैं भी कह रही हूँ ना, आप मुझे पसंद करते हो, मेरा काम देखते हो, फैंटास्टिक, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू आस्क मी समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली पर्सनल टू मी। अच्छा, पब्लिक में कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपका भी एक ड्रामा चल रहा है हाबिल और काबिल, जी, उसमें मैं जी। देख रही हूँ, मैं अक्सर क्योंकि मैं देखती हूँ वो सोशल मीडिया पे वो थैंक ड्रामा, यू सर। तो अब उसके नीचे ना बड़े कमेंट्स होते हैं कि ये सच में भी ऐसा ही होगा, इसको तो एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, बड़ी चीज़ें आती। फिर उसका ना रिएक्शन पब्लिक में भी आता है एट टाइम्स, हाँ। जब आप किसी मॉल जा रहे होते हैं, कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे, कभी हुआ है आपके साथ कि किसी आंटी ने आगे पकड़ लिया होगा, तुम तो बड़े जालिम निकले उस ड्रामा में? कोट करें उस चीज़ को कि कहाँ कुछ ऐसा हुआ? अच्छा, मोस्टली आंटीज ही ऐसा करती हैं, तो वो मुझे बहुत सारी आंटीज मिली कहती हैं तुम बहुत गलत कर रहे हो उसके साथ, मत करो। और फिर आगे से आपका रिस्पॉन्स? मैं कहता हूँ आंटी मैं नहीं करूँगा अब, मैं फौरन बोलता हूँ, हाँ, बिकॉज मुझे शरीफ लगता है बच्चे बन वो जाते। बहस तो कोई काम आएगी नहीं कि आंटी देखें ड्रामा है ये। मैं फौरन कहता हूँ, बिकॉज देखो जो व्यूवर मेरा काम देखता है वो मेरे सारा आंखों हाँ। पे, वो मुझसे कुछ भी बात कर सकता है रिगार्डिंग माई वर्क, उसको मेरे मुंह पे बोले कि आप अच्छा नहीं कर रहे, और मुझे बोले कि तुम बुरे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो, जो दिल करे मेरे सर आंखों पे। मुझे नहीं याद पड़ता है कभी भी ऐसा हुआ हो कि नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम, no matter how bad I'm looking to myself, if there is somebody who wants to take a picture, I will take a picture. So these people are on, मतलब मेरे सार आंखों पे। पिक्चर की बात हो रही है तो इससे अगर मैं इस चीज़ पे मूव ऑन करना चाहूँ कि कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे मतलब अनएक्सपेक्टेडली लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो गए और आपको फील हुआ कि यार मैंने कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया। अनएक्सपेक्टेड तो कभी भी नहीं होता है। देखो इतना काम करने के बाद आप एक्सपेक्ट यही करते हैं दैट, शुरू की अजीब तब लगता है जब आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं और कोई आपको ना पहचान रहा हो, तो दैट्स वो आपको उस दिन आपको महसूस होता है कि यार शिट मैं कुछ। अच्छा, शुरू में कोई प्रोजेक्ट आया और बताया हो सबको कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट किया, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो? नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते वो थोड़ा अजीब हो जाएगा।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है यार, आई हैव बीन वेरी लकी दैट वे टू बी ऑनेस्ट कि बहुत बहुत कम लोग हैं जिनका हर ड्रामा कदरे कामयाब हो जाए. देखो बिल्कुल. सुपर डुपर एक ड्रामा जाता है कि हर एक्टर का ना हाँ. 5 साल में एक ड्रामा जाता है, और वो मेजरली वही ड्रामा होता है जिससे किसी को ब्रेक मिल रहा होता है. मेरे करियर में ऐसा हुआ कि मुझे मुझे ब्रेक मिला इन 2014. It's 2024 now, and That's if sad. still I am relevant and still people watch my work and they feel fresh about it. और मुझे लगता है कि लोग आपका काम देख के ये समझते हैं ना कि आप ऐसे ही होंगे, तो then you're a damn good actor to convince them that that's how you are, because कोई भी किरदार देख के मोस्टली फिल्म्स में हम जब बच्चे थे हाँ. तो हम जब भी देखते थे कि हीरो, तो हम मानते थे ये ऐसा ही है. जब हम देखते थे विलन तो हम मानते थे ये ऐसा ही है. सही है. हाँ. और जब हम उनको कहीं अवार्ड्स वगैरह पे इकट्ठे हंसते खेलते देखते थे तो हम बड़ा गुस्सा आता था कि ये इससे क्यों मिल रहा है, इसने तो इसकी माँ को मारा था. हाँ. यू नो, बिकॉज वी यूज्ड टू हैव दैट ड्रीम वर्ल्ड गोइंग ऑन. तो आज के दौर में भी अगेन आई एम इन द सेम जॉब, तो जब भी लोग कहीं ये लिखते हैं कि ये असल में ऐसा ही होगा, ये एक्टिंग तो लग ही नहीं रही, so that, and deep down I know that you're doing a good job, buddy. That's why these people are thinking like that, because I'm not the only actor who play anti-hero roles. You know, and if I get that highlight from people, then I think it's the best thing, man. तो कौन सा ऐसा रोल जो आप करना चाहेंगे अभी तक आपने किया नहीं है? Yeah, I think something very challenging. I think मैं अभी जब मैंने कॉमेडी किया इश्क काबू में, तो मैं बहुत एक्साइटेड था. आई थिंक एवरी डे ऑन द सेट आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आई वाज डूइंग समथिंग जो मैं इतना नहीं करता हूँ, और मेरा पहला रोम कॉम था. तो आई थिंक आई वुड लाइक टू डू मोर कॉमेडी, बिकॉज आई थिंक वो कम होती है. आई फील इट फ्रॉम हियर, सो इट कम्स आउट नेचुरली. और मैं बहुत फ़ैन हूँ कॉमेडी, जितने एक्टर्स करते हैं उनका. तो दैट्स वन जॉनर आई थिंक आई वुड लाइक टू डू मोर. कॉमेडी की और ड्रामास जो हैं वो आप करना चाहिए. दैट्स ग्रेट. For अच्छा, sure. मोस्टली हमारे एक्टर्स को हमसाया मुल्क इंडिया से ऑफर्स आती हैं मूवी की, ड्रामा की, कुछ भी. आपको कोई ऑफर आई? एक आई थी ना यार बहुत सालों पहले, आई टोल्ड दिस इन एन इंटरव्यू एज वेल. आई थिंक वो पंजाबी फिल्म बन रही थी, अच्छा. और मेरी मीटिंग भी हुई थी यहाँ पे लाहौर में उन लोगों से, वीडियो कॉल के थ्रू उनसे बात हुई थी, और यहाँ जो लोग कोऑर्डिनेशन में थे उनके ऑफिस में. लेकिन उस वक्त मुझे नहीं लगा कि इट्स अ गुड चॉइस. 2 हीरो थे उसमें, एक उनकी तरफ से हीरो होना था, और और एक एक आप. दे वांटेड मी. बट मुझे पता नहीं क्यों उस वक्त मैं ड्रामा कर रहा था, ऑलरेडी शूट कर रहा था, और उन्हें फॉरेन डेट्स चाहिए थे. ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता था, मैं कर भी सकता था, लेकिन समहाउ दिल ने कहा कि यार नहीं, अगर तब वो एक सूटेबल मोमेंट पहली फिल्म करेंगे तो फिर सोलो हीरो करेंगे. लेकिन अगर आप इस तरह की कोई ऑफर आती है तो आप एक्सेप्ट करेंगे? 100% यार, अगर कोई करने वाली चीज़ आती है आई विल डू इट फॉर श्योर. एक अच्छी ऑफर आ जाए तो डेफिनेटली आप उसको एक्सेप्ट करेंगे. 100%, That's 100%, why not? हैप्पीएस्ट मोमेंट एंड सैडेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? Happiest moment I think was the day I was out in public and I realized that I've done it. You know, then मैं कॉलेज में शूट करने गया था, सज्जल और मैं थे उस ड्रामे में. ठीक. किससे कहूँ उस ड्रामे का नाम था. तो रुखसार मेरा ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ था. फिर शेर आरा उसके फ़ौरन बाद आया था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था. तो मैं एक ड्रामे की शूट करने गया था उस यूनिवर्सिटी में, और ये मुझे पता चल गया था दैट यू नो आई एम बिकमिंग दैट स्टार दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एंड माय ड्रामास आर वर्किंग. लेकिन वो एक कहते हैं ना एक मजमे का जो रिस्पॉन्स होता है वो शायद अभी तक नहीं दिखा था मैंने. इवन दो मैं हेयर एंड देयर आई मेट पीपल कि फ़ैन हैं, आपका ड्रामा देखा है. पर उस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में लाहौर में हम एक शूट कर रहे थे, तो मेरी जब गाड़ी मैंने पार्क की अंदर, एंड आई थिंक द स्टूडेंट्स गॉट टू नो, तो वो गाड़ी के चारों तरफ वो मेरे दरवाजे पीट रहे हैं, और सो जस्ट मैं गाड़ी के अंदर बैठा था अकेला, और मेरा मैनेजर था मेरे साथ उस वक्त अली, और वो बहुत ट्राई कर रहा था कि लोग हट जाएं टाइप, but there were 90% of तब girls. से ही वो स्टार फीलिंग आई होगी And जो I मूवीज में I was देखते हैं. amazed to see it. अब मैं मतलब देख रहा था और मैं कह रहा था कि okay, this is happening. तो for a minute तो मैं सिर्फ देखता रहा कि you know yeah, okay, come on man, we've done something. But then I got out of the car and I took pictures with each of them,
आधा घंटा हमें लगा, शूट रुकी रही और हम उन सब से मिले और वो एक बहुत ही कमाल दिन था. हाँ, उस टाइम ये रियलाइज होता है कि हाउ मच पीपल लव यू. या सैडेस्ट मोमेंट, कोई ऐसा मोमेंट जिस पे लगा हो कि आप यहाँ पे जिंदगी रुक गई है, बस अब Yeah, आगे that was बढ़ना obviously मुश्किल my है. father died when I was very young. तब एहसास नहीं हुआ था मुझे. तब नहीं पता था कि जब आप 5 साल 4 साल के होते हैं तो आपको नहीं पता होता आप क्या खो रहे हैं. But then one day I was really missing him. And I think वो जो उस दिन मुझे फीलिंग आया वो बहुत सैड था यार. मैं बहुत घंटों में रोया. And was missing him a lot. And well, I miss him every day. But that day I realized that okay, that this is going to be hard because पहला hurdle आया था मेरे career में. And I really wanted my father to be there, you know. But then yeah. कोई ऐसा हार्डेस्ट मोमेंट जहाँ पे लगा हो कि यार अब्बा जी यहाँ होते तो Yeah, again मुश्किल ना ऐसा ही एक होता. moment था. और but then अल्लाह हिम्मत दे देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं. But the biggest loss I think I've ever had is my father, for sure. ठीक है. आगे अब कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो कि बड़ा प्राउड मोमेंट है, मतलब यहाँ पे मैंने ज़िंदगी में वो सब अचीव कर लिया जो मुझे करना था. नहीं यार ऐसा मोमेंट नहीं आया अभी. अभी तक नहीं आया. I think आएगा for sure, inshallah. I'm on it. So let's see. सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अब मुझे लगता है सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एक बहुत अच्छी फिल्म करूं. क्योंकि अब मुझे लगता है it's the time for me to be on that big screen and show people what I can do, you know, on a bigger screen. So let's see. और अगर उस फिल्म को बनाने वाले खलीलुर रहमान कमर साहब हों, बनाने वाले तो नहीं होंगे, लिखने वाले हो सकते हैं. लिखने वाले हों, हाँ, क्यों उसको नहीं यार, डायरेक्ट कर रहे हो. He's a brilliant writer यार. I think खलील साहब any day is the best writer that we have. And मैं honestly उनकी बाकी सब बातों को इग्नोर कर देता हूँ. मैं उसके बारे में कोई राय नहीं देना चाहता अच्छा, हूँ. अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से वो हमेशा हाईलाइटेड ही रहते हैं. हाँ. किसी भी प्रोग्राम में देखें, सोशल मीडिया पे बड़ा कुछ सही भी हमेशा, बोलते हैं वो, पता है. सही भी बोलते हैं बहुत सारी. किन चीज़ों से आप वो इत्तेफाक बेसिकली करें? ना 4 बातें हम सही बोल के जब 6 बातें थोड़ी ऊपर नीचे बोल देते हैं तो फिर लोग उन पे ध्यान नहीं देते. और 6 एक को और चीज़ consider जो कर मुझे लेते लगता है ना वो है लहजा. हाँ. देखो टोन आपकी. गलत लहजे में सही बात भी गलत लगती है. वो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से. तो दोनों में बड़ा फ़र्क है. एग्जैक्टली. और सामने वाला नहीं सुनना चाहता सख्त लहजा आपका. हाँ. तो मुझे लगता है लहजों का मसला है ये थोड़ा. आपको जब अपनी बात अगर किसी की दिल में उतारनी है तो वो आप सिर्फ प्यार से उतार सकते हैं, गुस्से से नहीं उतार सकते. बिल्कुल ऐसे. वो नहीं हो सकता. कोई ऐसा प्रोड्यूसर या कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो? काशिफ निसार. अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं उनके साथ? आई थिंक हमने 3-4 ड्रामे किए एक साथ. मजीद और उन्हीं के साथ कोई लेकिन ऐसा, मैं करना मतलब मैं चाहूँगा कोई for ऐसा sure. नाम चाह रही हूँ जिनके साथ आपने काम नहीं किया और आप चाह रहे हैं कि मैं काम जिनके साथ काम नहीं किया है और मैं नदीम बेग साहब. करूं. नदीम बेग. Yeah, and Nabil Qureshi. Both of them, I think they are a gift to the industry. No and, doubt. and inshallah कोई someday. ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिनके साथ आप चाह रहे हो कि मैं अगला प्रोजेक्ट करूं? यार मैं सबके साथ ही काम करना चाहता हूँ. आई नो मेरे साथ बहुत सारे लोग शायद नहीं करना चाहते होंगे. और इसकी वजह? पर मैं करना चाहता हूँ. वही ना, this image that people create and then people who are lazy they want to believe it. You know, it's that simple. कोई अधूरी ख्वाहिश? बहुत सारी हैं. कोई एक? सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जितनी अधूरी ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा कर लें हम. अल्लाह करे कि ऐसा हो. और एक अधूरी ख्वाहिश है कि फिल्म आ जाए हमारी कोई अच्छी सी, म्यूजिक एल्बम आ जाए. और वो एल्बम आ जाए यार. ये एल्बम ने तो दुख दे दिया मुझे. वो मुझे भी बड़ा गहरा फील हुआ जैसे म्यूजिक एल्बम. शुरू से म्यूजिक का पता नहीं वो मैं हर बार मैं प्लान करता हूँ और वो फिर ड्रामों की नज़र हो जाता है वो. अभी जैसे हम ब्रेक लेने वाले थे पर आई साइंड इश्कावे के दौरान आई साइंड हाबील काबिल ख़त्म हुआ तो 2 गाने रिकॉर्ड किए हमने. अच्छा, हाबिल काबिल ख़त्म हो गया तो थोड़ा इंसाइट देना कि
क्या होने वाला है आगे? बहुत कुछ मैं देख रही हूँ तो मुझे बड़ी अब क्यूरोसिटी हो रही है कि क्या होने वाला है. बहुत कुछ होगा. बहुत कुछ होगा. आई थिंक इट्स वन ड्रामा. हारिस चेंज हो जाएगा. देखें क्या कह सकते हैं. बता दें थोड़ा हारिस सा. हारिस जैसे लोग वैसे चेंज होते नहीं देखे मैंने सोसाइटी में. बट ड्रामे में क्या होगा ये तो आपको देखना पड़ेगा देखने के लिए. ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ दैट इट्स वन ऑफ द ओनली ड्रामाज जिसके हर एपिसोड में आपको कोई ना कोई हाईलाइट हाँ, देखने कुछ को मिलेगी. नया ट्विस्ट मिल रहा है हर हाँ एपिसोड हर में. एपिसोड में मिलेगी और ये एंड तक मिलेगी आपको. स्पेशली हारिस की वजह से मिल रहा है. बड़ा सरप्राइजिंग होता है व्हेन यू एक्सपेक्ट कि अब सब ठीक हो रहा है. वेरी नहीं, ग्रेटफुल नहीं. यार. मैं लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया. एंड लेटली वाज ट्रेंडिंग एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड एवरी डे लोग एडिट्स बनाते हैं और मैं एक नेगेटिव रोल कर रहा हूँ पर फिर भी इतना प्यार मिल रहा है. हाँ, अक्सर मैं कमेंट That's- सेक्शन में that's देख रही crazy. होती हूँ कि हाँ. हारिस और सोबिया का वो ये सीन हमें बड़ा अच्छा लग रहा है. ये चीज़ हाँ दोनों नेगेटिव हैं लेकिन काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है. Exactly. And I think all the other actors also are doing a great job. Especially मेरे जितने scenes महमूद असलम साहब के साथ थे वो लोगों को बहुत अच्छे लगे. और जब हम वो scenes कर रहे थे तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि ये एक मज़ेदार कॉम्बो लोगों को देखने को मिलेगा. अच्छा, क्योंकि हारिस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वाकई आप में हैं रियल लाइफ में भी? कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. नहीं बड़ा स्मार्ट है मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है आप में. नहीं. आई थिंक मेंटली इज I वेरी think he's क्लेवर. not smart ना, he's very evil. I think वो smartness होना एक अलग बात है. जैसे और लोगों को लगता है कि मैं हारिस जैसा हूँ ये बड़ी कमाल बात है. हाँ. क्योंकि मेरे में genuinely हारिस वाला कोई इंस्टिंक्ट नहीं है. पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है. मैं कहता हूँ कि see I'm a damn good actor यार. That's the only reason why. That's all that I can say. इसके बाद आप रेडी रहें, आपको मॉल्स में और बहुत सारी जगहों पे खवातीन टकरने वाली हैं. कोई बात नहीं. मुझे लगता है कि पर जितने लोग मुझे मिले उनमें से कभी किसी ने ये नहीं कहा. सबने बहुत प्यार दिया. और अभी I took my first ever road trip alone from Lahore, Islamabad and onwards. And रास्ते में मुझे बहुत प्यारे बच्चे थे 6-7 वो मिले और उन्होंने कहा आपका ड्रामा चल रहा है आप ही का आप बहुत अच्छे लग रहे मैंने कहा मैं आपको अच्छा क्यों लग रहा हूँ मैं तो बुरा हूँ उसमें फिर भी आप अच्छे लग रहे. तो मैंने कहा वही शायद एक बात है जिसकी वजह से लोग इतना प्यार दे रहे हैं. मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स को लोग प्यार नहीं ये देते. बड़ा अच्छा जा रहा है जहाँ पे लगता है कि चेंज हो गया फिर वही वापस हारिस अपनी उस पे आ जाता है. या नाउ सोबिया आल्सो फ्यूल्स हिम ना. वो कहीं ना कहीं बेचारा थोड़ा हारिस इतना बुरा नहीं था. मेरा अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखो ना तो मुझे लगता है कि अगर आप एक बच्चे को पूरी ज़िंदगी इतना सर पे चढ़ा के रखेंगे और आप दिन रात उसको ये बोलेंगे कि तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है, तुमसे प्यारा कोई नहीं है, तुमसे मशहूर कोई नहीं है, तुम हम में हमारा सब सर फ़ख्र से बुलंद रहता है तुम्हारी वजह से. एंड देन वन फाइन डे एकदम आप स्विच ऑफ कर देंगे और आप उसको निगलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो वो पागल ही होगा और क्या होगा. अच्छा, घर में कभी ऐसा हुआ है कि फील किसी एक बहन भाई के साथ बड़ी वो हो रही हो, डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो कि तुम अच्छे हो, कंपैरिजन हो रहा नहीं हो? मेरी माँ इस मामले में माँ जी बहुत उनको ज़रा सा फील हो जाए कि किसी एक को अटेंशन ज़्यादा मिल रही है तो वो फ़ौरन बैलेंस कर देती है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट गुड पेरेंटिंग इज़ ऑल अबाउट. घर के काम करते हैं आप? सारे कुकिंग आती है? क्या सबसे अच्छा बना लेते हैं? सभी बना लेता हूँ यार मैं. पर मैंने बहुत बनाया है मिक्स वेजिटेबल चिकन पुलाव एक मैं बनाता हूँ प्रोटीन के लिए. वो अच्छा रहता है. तो वो मुझे लगता है कि मैंने कोई 100 बार तो बनाया होगा. अब मैं आंखें बंद करके वो बना सकता हूँ. अब वो आपकी स्पेशल रेसिपी से तैयार हाँ होता है. हाँ कह सकता है. इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो मैं यूँ रेडी कर लेता हाँ, हूँ. तो उसकी थोड़ी सी रेसिपी शेयर करें. अरे यार तमाम खवातीन इस वक्त चाह रही होंगी कि हम कैसे ये it's very स्पेशल. simple. The way you make अगर आप मिक्स वेजिटेबल चिकन बनाते हैं सालन तो यू डू द सेम थिंग. यू पुट प्याज यू सबसे पहले आप अच्छा प्रॉपर रेसिपी बताओ तो पहले आप चिकन को क्यूब्स में काट लो. ये आगा If अली you की have स्पेशल boneless, रेसिपी है, गौर से सुने. एंड देन अदरक लहसुन डाल के उसको थोड़ा फ्राई कर लो और बहुत कम ऑयल में. मैं बहुत कम और मैं देसी घी यूज़ करता हूँ तो अगर वो हो सके तो और भी अच्छी बात है. और फ्राई करके देन यू पुट द tomato paste and then onion paste and then you put the vegetables and then you उसको कुक करो जब तक वो अपना ऑयल नहीं छोड़ दे. and then put some water और चावल
सबसे पहले भिगो देना, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले मैं भिगो देता हूँ, एंड देन फिर उसमें आप पानी डालो इतना कि वो जितने चावल हैं उसके हिसाब से आप पानी डालो, एंड देन लेट इट बॉयल, एंड देन पुट राइस, एंड देन स्लोली यू मिक्स अच्छा, मैं इट. टेस्ट लेना चाह रही थी कि वाकई आपको रेसिपी पता है या नहीं पता. पॉडकास्ट के बाद बनवाते हैं हम इससे नीचे किचन. नहीं पता है, सब पता है, सब पता है. अभी हम पॉडकास्ट जैसे ही खत्म होते हैं इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे तो मैं शेयर भी करता रहता हूँ जब मैं कुक करता हूँ, स्पेशली कराची में जब मैं होता हूँ. लाहौर में मैं कुक नहीं करता, वहाँ मेरी माँ है, हाँ, वहाँ माँ के हाथ का वहाँ मैं माँ के हाथ का खाता हूँ. और हमारी एक बाजी है, बड़ी कमाल बनाती है वो भी खाना लाहौर में. तो मेरी माँ के पास हाउस हेल्प है, मेरे पास नहीं है, तो मैं वो अपने काम फ़ायदा खुद उठाता हूँ करता मैं लाहौर जब मैं जाता हूँ. पर कराची में आई कुक माई ओन फूड एंड आई टेक ऑफ एवरीथिंग. चलिए, ऑल इन वन है ये, हर चीज़ में एक्सपर्ट है. आगे के कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि आपने साइन किए हैं? अभी तो एक ही है जो साइन किया है, और वो आएगा इंशाल्लाह जल्द ही. और देयर इज़ वन मोर थिंग, कल ही अल्लाह खैर के मीटिंग है उसका, तो वो जब साइन हो जाएगा फिर उसके बारे में भी लोगों को पता चलेगा. सो लेट्स सी. एंड अगेन मैं 2 गाने रिकॉर्ड किए हैं, तो एक म्यूजिक वीडियो भी आएगा बहुत जल्द, होपफुली. म्यूजिक एल्बम भी आएगी बहुत जल्द. होपफुली आई रियली वांट टू रिलीज इट नाउ मैन. अब हम चाह रहे हैं कि आप रिलीज कर ही दें. इंशाल्लाह. लास्टली अ मैसेज फॉर ऑल द यंगस्टर्स या जितने भी आपके फैंस हैं उनके लिए. Be real. I keep on saying this to everyone. Don't fall for social media's bullshit. ये जो आप देखते हो, all the YouTubers and all these people who have this fancy living, यकीन करो पर्दे के पीछे सीन वही है सबका जो आपका है. तो बी रियल मैन, बी लव योर सेल्फ. ये आजकल हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो गए हैं कि हमें और अच्छे कपड़े चाहिए, हमें और अच्छी गाड़ी लेनी है. वो सब अच्छी बात है, बट टेक इट लाइक अ प्रोसेस शुड बी. स्लोली अर्न इट. जल्दबाजी में फ्रस्ट्रेट होके नहीं रहो, जितना है उसमें खुश रहो. उससे बड़ी कमाल की हरकत आप नहीं कर सकते. तो यू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव एंड वर्क हार्ड टू अर्न मोर एंड मेक अ गुड लाइफ आउट ऑफ इट. एंड डोंट फॉल फॉर सोशल मीडिया. बी रियल. जो आपके रियल से प्यार करेगा वही आपसे प्यार करेगा. जो आपके शशकों के लिए आपसे प्यार कर रहा है उसको आपको नहीं चाहिए, वो शशके चाहिए उसको. किसी और के पास ज़्यादा दिखेंगे. तो बी रियल मैन. ठीक है, सोशल मीडिया की बात आई तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया. जाने से पहले वही पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे एक्टर्स, इवन पॉलिटिशियंस भी अब तो टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं. आप क्यों नहीं है टिकटॉक? पता नहीं यार, ऐसा नहीं है कि मुझे टिकटॉक से कोई मसला है. मैं शायद हूँ नहीं उस टाइप का. जैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत ही इनएक्टिव हूँ. मैं खुद की पिक्चर लूँ ना अगर कभी भी, तो वो मुझे कभी अच्छी नहीं लगती है, कभी भी अच्छी नहीं लगती है. आई हार्डली पोस्टेड ए सेल्फी. आई थिंक कि वो बहुत ही कोई कमाल लाइटिंग हो जाए और तो कुछ हो जाए, वरना मुझे लगता है मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी लुकिंग आदमी हूँ. और मैं शायद इन ऑल दोज थिंग्स में इतना अच्छा हूँ नहीं. और टिकटॉक पे आपको और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा. या सो मेरा इंस्टाग्राम भी इज़ ऑल अबाउट माई वर्क. आई कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट माई ड्रामाज एंड व्हाट आई डू ओवर देयर. सो टिकटॉक पे एक अकाउंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वो उसको मेंटेन करना मुश्किल है. स्क्रीन पे इतने ज़्यादा है कि मैं. उसको करना मुश्किल है. हाँ, इट्स एंड देन यू गेट ऑक्यूपाइड इन. हमारा काम इतना ऑक्यूपाइंग होता है कि उसमें से घंटे निकालना और फिर वो सब करना. आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो मे बी समडे इन द फ्यूचर, आई डोंट नो. Chani, hoping to see you on TikTok as well very soon. Let's see, you never know. Well, thank you so much once again, आगा. My pleasure. हमें वक्त देने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए, My pleasure. और बड़े इनसाइडर्स देने के लिए, जिसमें हमें थोड़ी बातें और भी पता चली इनके बारे में, कुकिंग का स्पेशली. पॉडकास्ट के बाद जाते हैं और इनसे इनकी स्पेशल रेसिपी के मुताबिक डिश बनवाते हैं. हम वो खाने जा रहे हैं. अब तब तक नेक्स्ट पॉडकास्ट का जो है वो इंतज़ार करें, क्योंकि मैं खाने के लिए बड़ी एक्साइटेड हो गई हूँ. तो बातें इधर उधर जा रही हैं. आई एम अ फूड लवर. सो आप इंतज़ार करें नेक्स्ट पॉडकास्ट का. टिल दैट, अल्लाह हाफिज़.